ارشاد فرماتے ہیں الا کلکم راعن و کلکم مسئول عن رعیتہ، سن لو کہ تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ 2 جمعہ قبل ہم نے ایک سوال آپ کے سامنے رکھا تھا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے مختلف لوگوں نے ایک ہی سوال کیا اور حضور نے جواب مختلف دیا۔ جیسے کسی نے پوچھا کہ افضل ایمان کیا ہے تو سرکار نے فرمایا نماز پڑھنا۔ کسی نے پوچھا کہ افضل ایمان کیا ہے تو کبھی جواب ملا روزہ رکھنا۔ کسی نے پوچھا افضل ایمان کیا ہے تو جواب ملا حج کرنا۔ کسی نے پوچھا افضل ایمان کیا ہے تو جواب ملا زکوٰۃ دینا۔ کسی نے پوچھا افضل ایمان کیا ہے تو جواب ملا سلام کرنا۔ کسی نے پوچھا افضل ایمان کیا ہے تو جواب ملا ماں باپ کی فرما برداری کرنا۔ آخر یہ سوچنے کی بات ہے، ہم نے آپ کے سامنے سوال یہ رکھا تھا کہ کسی کلاس میں اگر 100-150 بچے ہو تو رول نمبر ایک ہی بچے کا ہوگا نا، سب کا تو نہیں ہوگا، یا 8-10 کا تو نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے افضل ایمان ایک ہونا چاہیے، یا تو نماز یا روزہ یا حج یا زکوٰۃ۔ یہ الگ الگ سرکار کیوں فرما رہے ہیں؟ الگ الگ جگہ سے میں آپ کے سامنے جو بات نچوڑ رکھ رہا ہوں۔ بخاری شریف میں کئی جگہ افضل ایمان سلام کو کہا گیا کہ سلام پھیلاؤ، کہیں کہا گیا کہ کھانا کھلاؤ بھوکوں کو، کہیں کپڑا پہنانے کی بات آئی ہے۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ تو دیکھیے اس کا جواب اگر آپ بہت گہرائی پہ اتریں گے تو سرکار نے ایک ہی سوال کا مختلف جواب کہ سرکار سے جس شخص نے سوال کیا اس کی کنڈیشن یا وہ جہاں کا رہنے والا ہے وہاں کے حالات کے اعتبار سے سرکار نے جواب دیا۔ ہو سکتا ہے کہ جس شخص نے پوچھا ہو وہ اسلام کے تمام اراکین کو، اسلام کے تمام ضروری مسائل جتنے ہیں وہ سب کو جانتے بھی ہو اور تمام احکام پر عمل بھی کرتے ہو۔ تو جہاں سرکار نے کہا کہ نماز افضل ہے، ہو سکتا ہے وہ نماز میں غفلت کرتا ہو، یا وہ جس علاقے سے ہے وہاں کے لوگ نماز میں سستی کرتے ہوں۔ جس کو سرکار نے کہا کہ زکوٰۃ افضل ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ یا جہاں سے وہ تعلق رکھتا ہے وہاں کے لوگ زکوٰۃ میں سستی کرتے ہوں۔ جہاں سرکار نے جس سے یہ فرمایا کہ ماں باپ کی فرما برداری کرنا، والدین کی فرما برداری کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ افضل ایمان ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ یا جہاں کے وہ ہیں وہ لوگ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے میں شاید کوتاہی کرتے ہوں، تو سرکار نے فرمایا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ افضل ایمان ہے۔ یعنی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ایک ہی سوال کا مختلف جواب جو دے رہے ہیں وہ پوچھنے والے یا پوچھنے والا جس جگہ سے تعلق رکھتا ہے وہاں کی کنڈیشن اور حالات کے اعتبار سے سرکار جواب دے رہے ہیں۔ اگر ایسی جگہ سے تعلق رکھتا ہے کہ جہاں کے لوگ سارے معاملات کو کرتے ہیں، اسلام کے تمام احکام کی پیروی کرتے ہیں مگر نماز میں سستی کرتے ہیں، سرکار نے فرمایا نماز افضل ہے۔ اگر زکوٰۃ میں سستی کرتے ہیں تو سرکار نے فرمایا زکوٰۃ افضل ہے۔ اگر وہ سلام میں سستی کرتا ہے تو سرکار نے کیا فرمایا کہ سلام کرنا افضل ہے۔ اگر لوگ سارے احکام پر عمل کرتے ہیں مگر یہ ہے کہ ایک دوسرے سے جو تعلق ہے یا ایک دوسرے سے جو اگر کسی مان لیتے ہیں کہ کوئی سماج میں بھوکا سو رہا ہو، اس کو کوئی کھانا دینے کو تیار نہیں، تو سرکار نے وہاں کہہ دیا کھانا کھلانا افضل ہے۔ اگر اسلام کے تمام احکام کی پیروی ہوتی ہوں اور کہیں یا کسی جگہ کے لوگ حج کے مسائل سے واقف نہ ہو یا حج میں یا حج کرنے سے کوتاہی کرتے ہوں، اس میں کچھ کمی کرتے ہوں، تو سرکار نے کیا فرمایا حج کرنا افضل ایمان ہے۔ مطلب یہ ہے کہ سرکار ہے تو وہ سائل کو بھی جان رہے ہیں اور جس جگہ سے وہ تعلق رکھتا ہے وہاں کے لوگ کیا ہے، حالات کیا ہے، سرکار جانتے ہیں، اس اعتبار سے سرکار جواب دے رہے ہیں۔ مگر اب وہ سوال اپنی جگہ آ رہا ہے جو میرا تھا کہ اسلام اور مسلمانوں کا جو یہ جو کانسیپٹ ہے، مسلمانوں کا جو یہ طریقہ ہے کہ الگ صوبے کے لوگ الگ جگہ پہ، ابھی حالیہ اب میں اسی اپنی تقریر کو جوڑنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ابھی 2-4 روز پہلے کی ویڈیو تمام لوگ دیکھے ہوں گے، ایک ویڈیو آئی سامنے کہ جس میں ایک مفتی صاحب جو ہے مفتی شہریار صاحب وہ شبیر برکاتی کو ڈانٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں نعت پڑھنے کے بعد۔ وجہ کیا ہے؟ اس کی دقت کیا ہے؟ پریشانی کیا ہے؟ آج ہماری عوام کی اگر ہم بات کریں، عام مسلمانوں کی اگر بات کریں، ان کے پاس مدرسے میں جا کر تعلیم سیکھنے کے لیے سب کے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہے اور ایسا ہو بھی نہیں سکتا، سب کر بھی نہیں سکتے ہیں۔
کہ बाज़ाब्ता मदरसे में एडमिशन लेके सारे के सारे दीन के मसाइल सीखे, भले वो कंडीशन ना हो, दीन के मसाइल तो सबको सीखने हैं, सबके ऊपर फर्ज है जो जरूरी मसाइल है, तो रोजमर्रा के मसाइल है, वजू के मसाइल, गुसल के मसाइल, नमाज के मसाइल, ये तीन, ज़कात के मसाइल, ये 3-4 चीजें वह है कि जिनके मसाइल हर आदमी पर उतना ही फर्ज है जितना कि एक आलिम पर, एक मुफ्ती पर फर्ज है। वजू में कितने फराइज है, किन चीजों से वजू टूटता है, गुसल में कितने फराइज है, किन चीजों से गुसल टूट जाता है, नमाज के कितने फराइज है, कितने वाजिबात है, ये वो उलूम है, ये वो मसाइल है कि जिनका जानना आलिम हो या गैर आलिम, तमाम मुसलमान मर्द औरत सब पर फर्ज है, सब पर फर्ज है, चाहे वो मदरसे में जाकर पढ़े या ना पढ़े। लेकिन हमारे मुसलमानों के पास मदरसे में जाकर एडमिशन लेकर बाज़ाब्ता पढ़ने के लिए वक्त नहीं है। अब इनके पास एक सिस्टम ये था कि जब कोई इल्मी महफिल हो तो वहां शिरकत करें, वहां भी सारे लोग नहीं पहुंच पाते हैं। एक जुमा बयान था, वहां भी लोग बिल्कुल जब एकदम खुतबा होने के करीब आता है, अब जो है सानी अजान होने वाली है, अब जमात खड़ी होने वाली है, तब अक्सर लोग आते हैं। तो अब ले दे के एक चांस बचा था मुसलमानों के पास कि अब जलसा जुलूस के जरिए कुछ इल्म सीख लीजिए। और एक बात मैं आप लोगों के सामने कह दूं, सोशल मीडिया पे बड़ा चल रहा है कि शब्बीर वारसी और जो निजामत कर रहा था जलसे में कफील अंबर, दोनों का बायकॉट किया जाए। मैं कहता हूं सिर्फ इन दोनों का नहीं, इन दोनों की तरह जितने मुकर्रिर शोरा, वो कोई अपने वक्त के मुफ्ती हो, आलिम हो, हाफिज हो, कारी हो, जो भी, अगर वो मिंबर रसूल की पामाली करता है, अगर वो मुसलमानों तक सही दीन का पैगाम नहीं पहुंचाता है, जलसा जुलूस में सिर्फ पूरी रात हो हंगामा में 8-10 लाख पर मुश्तमिल जलसा होता है और कुछ मुसलमानों को दीन की बातें नहीं बताई जाती है, जो जरूरत, जिन चीजों की जरूरत है, जिन बातों की जरूरत है, उन बातों से अगर वो मुकर्रिर या शायर अगर लोगों को आगाह नहीं करता है तो उन तमाम लोगों पर पाबंदी लगनी चाहिए, उन तमाम लोगों को जलसा जुलूस के स्टेज से बाहर निकालना चाहिए, वो कोई भी हो। 8-10 लाख रुपए खर्च करके एक जलसा किया जाता है पूरी रात में। मुफ्ती साहब जब उठे, उन्होंने टाइम 2:10 बताया, बताइए 2:10 तक 2-3 शायर लोग जो है 2:10 बिहार और बंगाल की रात काफी अच्छी खासी रात हो जाती है। 5 बजे से पहले पहले वहां सुबह हो जाती है, यहां से 1 घंटा पूरा पीछे है जहां का ये वाकया है, 1 घंटा। यहां अगर हम मगरब 6 बजे पढ़ते हैं तो वहां 5 बजे पढ़ते हैं। अब ये हाल बताइए 2:10 पे कितनी रात हो गई होगी। उस वक्त एक आदमी को तकरीर के लिए उठाइए, ऐन नींद का वक्त होता है ये। अब जब आदमी नींद के कैद में मुकैयद हो गया है, सारे लोग सोने के करीब है, अब तकरीर के लिए उठाए जा रहे हैं, बताइए वो क्या दीन सीखेगा, वो क्या समझ पाएगा, उसके पास कौन सा पैगाम दिया जाए। तो ये सिर्फ 2 आदमी पर नहीं, जितने लोग स्टेज पर चिल्लाते हैं, लायानी तकरीर, किस्सा, कहानी, इस तरह के बयानात करते हैं, उन तमाम लोगों पर पाबंदी लगनी चाहिए, तमाम को स्टेज से बाहर करना चाहिए। वजह यह है कि जब कोई शख्स ख्वाजा गरीब नवाज की विलायत का इनकार कर नहीं रहा है, हुजूर गौसे पाक की विलायत का इनकार कर नहीं रहा है, आपके जलसे में जितने लोग बैठे हैं उनको किसी वली के इख्तियार से, किसी वली की विलायत से इनकार नहीं, किसी वाकया से कोई लेना देना नहीं है, तो वो तकरीरें हो क्यों रही है। हम ये नहीं कहते कि ख्वाजा गरीब नवाज की सीरत का बयान नहीं होना चाहिए या हुजूर गौसे पाक की सीरत का बयान नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। वो अइम्मा अपने अपने एतबार से करते हैं, मगर लाखों लाख रुपए खर्च करके ख्वाजा गरीब नवाज की सीरत सुनी जा रही है, लाखों लाख रुपए खर्च करके एक कफन चोर का वाकया सुनाया जा रहा है। बताइए ये लाखों रुपए खर्च इसलिए किए मुसलमानों ने कि तुम उनके पास एक किस्सा, एक कहानी बयान कर दो। आखिर कौन है मुसलमानों में जो इनकार करता है कि ख्वाजा गरीब नवाज अल्लाह की वली नहीं है, हुजूर गौसे पाक अल्लाह की वली नहीं है। कम से कम आपके सामने जो लोग बैठे वो तो इनकार नहीं करते हैं, फिर उनके सामने उनकी विलायत का लोहा मनवाना, उनकी सीरत बयान करना, जबकि मुसलमानों को जरूरत है कि नमाज से मसाइल से आगाह किया जाए, उनको हज और ज़कात के मसाइल से आगाह किया जाए, मुसलमानों को वजू और गुसल के मसाइल से आगाह किया जाए। मगर आप हिंदुस्तान के जितने जलसे होते हैं, कोई एक जलसा उठा के आप दिखा दीजिए कि जहां किसी मुकर्रिर ने वजू और गुसल के फराइज बताए हों, जहां किसी मुकर्रिर ने ज़कात के मसाइल बयान किए हों, जहां किसी मुकर्रिर ने नमाज और रोजे के मसाइल और उसकी अहमियत पर बात की हों। आपको मसाइल कहीं नहीं मिलेंगे। फराइज नमाज कोई मुकर्रिर किसी जलसे में बयान कर रहे हो, ऐसा आपको नहीं मिलेगा। ज़कात के जरूरी मसाइल, नमाज के फराइज, नमाज के वाजिबात, ये मुकर्रिर कोई खतीब बयान कर रहा हो, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। क्या मतलब है फिर इन जलसों का। आखिर ये जलसे लोग सिर्फ ये 2 शख्स की बात करते हैं। अभी मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूं तो सारे लोग 2 आदमी को जिम्मेदार, क्या इन 2 लोगों ने सिर्फ हिंदुस्तान का माहौल खराब किया। आज मैं आपके सामने बताऊं,
एक गैर मुस्लिम से मेरी बात हुई, उसने कहा कि आज बहुत सारे गैर मुस्लिम अपने मजहब से सिर्फ इस वजह से बदजन हो जा रहे हैं कि जो इनके बाबा लोग हैं उल्टी सीधी महफिलों में जाकर उल्टे सीधे वाकये बयान करते हैं। जो कथा की महफिल होती है, जो कथा की मजलिस होती है, ये लोग जो प्रोग्राम रखते हैं, वहां इधर उधर अनाप शनाप और ऐसी अकल से मावरा बातें करते हैं बाबा लोग। बाबा लोगों की अजीब गरीब किस्सा कहानी और बातों की वजह से हिंदू लोग जो है अपने मजहब से बेजार हो रहे हैं। सोचने की बात है, अगर ये हिंदू ऐसा कह रहा है कि हमारे मजहब के मानने वाले लोग अपने मजहब से बेजार हो रहे हैं और अपने मजहब को लेकर शशोपंज में आ रहे हैं बाबा लोगों की गलत बयानी, गलत वाक्य, गलत किस्से की वजह से, तो बताइए जो मौलवी लोग गलत सलत तकरीरें करते हैं, लायानी और अजीब गरीब वाक्य बयान करते हैं, अजीब गरीब करामत, अजीब गरीब बातें जो करते हैं, बताइए इसकी वजह से मुसलमानों का मेयार खराब नहीं हो रहा है? अहले सुन्नत वल जमात की शख्सियत मजरू नहीं हो रही है? अहले सुन्नत वल जमात का जो अपना वकार है, जो इसकी अपनी पहचान है, जो इसका अपना शियार है, जो अहमियत है, वो कम नहीं हो रही है? बिल्कुल अहले सुन्नत वल जमात की अहमियत कम हो रही है। लेकिन लोगों को समझने की जरूरत है कि आज सिर्फ दो आदमी की बात हो रही है। हमारा मानना यह है कि जितने लोग मौका महल के एतबार से तकरीर नहीं कर रहे हैं या मौका महल के एतबार से नात खानों को 2-2 बजे रात तक मौका देने का कोई मतलब नहीं। बेशक हुजूर की नात सुनना, हुजूर की नात पढ़ना, हुजूर की नात सुनना सुनाना, ये रूह को, नफ्स को, दिल को एक सुकून मिलता है, इसमें कोई शक नहीं है। मगर ये जो लोग आज गवैयों की तरह, कव्वाली की तरह, नचनिया की तरह जो लोग नाच पड़ते हैं, क्या इससे दिल को सुकून मिलना है? क्या ये हजरत हस्सान बिन साबित की सुन्नत है? जो लोग हस्सान बिन साबित का नाम ले लेकर लोग जो है वो करते हैं, नात पढ़ते हैं और हुजूर का नाम लेकर के नजराना लूटते हैं कि हुजूर ने हजरत हस्सान बिन साबित को चादर गिफ्ट में दिया था, चादर नजराने के तौर पर दिया था। आखिर ये बात है, क्या हस्सान बिन साबित ऐसी नात पढ़ते थे? क्या इस तरीके से नात खानी होती थी? बिल्कुल भी नहीं। मगर एक मुसलमानों ने, हमारे नौजवान ने, जलसा जुलूस करने वाले अक्सर लोग हर जगह पे नौजवान पेश रहते हैं। इनको कौन चाहिए? एक ऐसा गवैया नचनिया किस्म का शायर जो आके खूब उल्टी सीधी नात पढ़े। कोई मतलब नहीं इन चीजों का। ये हमने, आप लोगों ने, हमारे आम मुसलमानों ने इस तरीके से सिस्टम बनाया है, एक दीन का मजाक बना के रख दिया है कि किसी से 2-2 बजे तक, जबकि जलसे का मेयार ये होना चाहिए कि कोई मुकर्रिर आए। मैं आपके सामने एक मोटी बात रखूं, आप इस बात को समझिए। जब आज से 50, 60, 70 साल पहले जो मशाइखिन एज़ाम होते थे, जो पीराने एज़ाम होते थे, उनकी जिंदगी को पढ़िए। वो तबलीग दीन के खातिर जब किसी मुरीद के यहाँ जाते थे, जब वो 1000, 2000, 1500 किलोमीटर दूर सफर करके कहीं जाते थे, ट्रेन से, कहीं गाड़ी से, कहीं बैलगाड़ी से, अलग अलग जगह से, इतने जराए नहीं थे, फ्लाइट नहीं कि यहां से बैठे और 2 घंटे में पहुंच गए। गुजरात से दिल्ली, दिल्ली से मुंबई, मुंबई से कर्नाटक, कर्नाटक से हैदराबाद, 1-1 घंटे में यहां से वहां पीर साहब जा रहे हैं, ऐसा माहौल नहीं था। 60, 70 साल, 80 साल पहले लोग एक आम सफर करके जाते थे। क्या करते थे पीराने एज़ाम? 2 दिन, 3 दिन पहले किसी जलसे में नहीं जा रहे हैं, बस वहां पे अपने कुछ मुरीदीन हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई दिल्ली का पीर है तो जम्बूसर आ रहे हैं और आके 3-4 दिन तक यहां रुकते हैं किसी अच्छे आदमी के घर, जिनके घर सुविधा हो। गरीब आदमी तो वो सारे खर्चे उठा भी नहीं सकता है। जाहिर सी बात है कि कोई अमीर ही दावत देगा, किसी अमीर के घर ही जाएंगे पीर साहब। लेकिन होता क्या था, जब कोई पीर साहब आते थे, लोगों से, जम्बूसर के लोगों से हालात मालूम करते थे, जम्बूसर में क्या चल रहा है, लोग धंधा पानी कैसे करते हैं, हमारे नौजवान क्या करते हैं, इनकी पढ़ाई लिखाई का क्या सिस्टम है, शादी ब्याह कैसे करते हैं, ये दीन के मामलात को कैसे करते हैं, ये अहकाम शरीयत पर किस कदर अमल करते हैं, यहाँ जम्बूसर में कौन सी बुराई आ गई है, किस तरीके से यहाँ खराबी आई है, इस्लाम और मुसलमानों के हिसाब से जो बात नहीं होने चाहिए वो कौन कौन सी बातें हैं जो हो रही है, कौन सी बुराई है जो जम्बूसर में पाई जा रही है, आखिर मुसलमानों में कौन सी कमी है, लोग इस्लाम पर अमल करने के तय किस तरह जज्बाती है, किस तरह अमल करते हैं, अहकाम शरीयत पर अमल पैरा होने से मुताल्लिक लोगों के जज्बात कैसे हैं, लोग क्या करते हैं, लोगों में कौन सी कमी है, कौन सी बुराई है। 2-2, 3-3, 4-4 दिन तक जम्बूसर का माहौल पहले मालूम करते थे, पूरे हालात का पहले पीर साहब जायजा लेते थे, उसके बाद बयान रखा जाता था, फिर तमाम लोग आते थे और फिर लोगों के सामने पीर साहब हालात के एतबार से बात करते थे। अगर जुआ खेला जा रहा था जम्बूसर में तो जुआ से मुतालिक तकरीर हो रही है, अगर कोई शराब पी जा रही थी तो शराब की हुर्मत पर तकरीर हो रही है, अगर कोई सूद में मुलविस था तो सूद की हुर्मत पर और उसके नुकसानात पर तकरीर हो रही है, अगर कोई बेनमाजी, अगर लोग नमाजों से गफलत करने लगे थे, नमाज से गफलत करने लगे थे तो नमाज की अहमियत, उसकी इफादियत और फजीलत पर तकरीर हो रही है। मतलब पीर साहब 1 हफ्ता पहले, 3 दिन 4 दिन पहले आके पहले हालात का जायजा लेते हैं, फिर उसके बाद प्रोग्राम रखवाते हैं, फिर जो हालात है उस एतबार से तकरीर हो रही है, उस एतबार से लोगों की इस्लाह हो रही है। और आज का पीर साहब 1 महीना, साल भर पहले इनसे तारीख लो, आपके प्रोग्राम से ठीक 1 घंटा पहले बाई फ्लाइट अहमदाबाद पहुंचा, आपके यहाँ प्रोग्राम में आया, प्रोग्राम आने के बाद प्रोग्राम किया, रात 2, 3, 4 बजे का वक्त है,
फिर पीर साहब की सुबह 6 बजे फ्लाइट है, सूरत से, अहमदाबाद से, बड़ौदा से, यहाँ से वहां से, इनको दूसरी जगह जाना है। ना इन्होंने हालात को परखा, ना इन्होंने माहौल को जाना, ना यहाँ के अहवाल कवायद से कुछ आशनाई हासिल की, कुछ भी नहीं। ना उनको कुछ पता चला कि जम्बूसर के लोग कैसी जिंदगी गुजारते हैं, यहाँ के मुसलमान किस तरीके से जिंदगी, कोई मालूमात हासिल नहीं की। आए और एक रटी रटाई हुई तकरीर, या कुछ बोलना था नहीं बोलना था, दुआ मांगे पीर साहब चले गए। एक मुकर्रिर का भी यही हाल होता है। ये सिस्टम ही गलत है कि एक सूबा के लोग दूसरे सूबे में जाकर तकरीर करते हैं। जब तक कि वो हालात से वाकिफ ना हो जाए, जब तक आप जम्बूसर के बारे में जानते नहीं, आप मुंबई और दिल्ली के रहने वाले, आप कैसे तकरीर कर सकते हैं इस्लाही मुआशरा पर? जब आपको पता ही नहीं जम्बूसर में क्या हो रहा है, तो आप तकरीर कैसे कर सकते हैं? वो मुस्तफा करीम थे जो लोगों के हालात को जानते थे, जो बाद में होने वाले हालात, पहले जो हो चुके तमाम हालात को मुस्तफा करीम थे, वो जानते थे लोगों को, उस एतबार से लोगों की इस्लाह फरमाते थे। क्या आज का मुकर्रिर जानता है जम्बूसर में क्या हो रहा है? 1 घंटा पहले पहुंचता है, तकरीर करता है, 1 घंटा जो खाने पीने में निकलता है वही, बाकी ना किसी से कोई वाजो नसीहत, ना किसी को किसी तरह की कोई इस्लाह की बात, कुछ भी नहीं करते, फिर यहां से चले जाते हैं। ये जो मुसलमानों ने तरीका बताया, जलसा जुलूस का जो तरीका बनाया है, ये तरीका ही गलत है। एक सिर्फ शब्बीर बरकाती या कफील अंबर नाजिम को नहीं, बल्कि हर उस मुकर्रिर और नात खा को स्टेज से बाहर निकालना चाहिए कि जो इस्लाम और मुसलमानों का मजाक उड़ा रहा है, जो अहले सुन्नत वल जमात की इज्जत को मजरू कर रहे हैं, उन तमाम शोरा और खुतबा को स्टेज से बाहर करना चाहिए। सिर्फ 2 जने की बात नहीं है, सिर्फ ये 2 जने नामचिंदा नहीं है, ऐसे बहुत सारे मुकर्रिरीन है, ऐसे बहुत सारे शोरा है कि जिनके नात और बयानात की कोई जरूरत नहीं है, मगर यह है कि वो कर रहे हैं। हजारों हजार रुपए लोग लुटा रहे हैं, 30 40 हजार रुपए एक रात के दे रहे हैं। हम लोग महीनों महीना 3 साल से, एक हमारी बात नहीं, हिंदुस्तान भर के तमाम अइम्मा जितने हैं 3 साल 10 साल से एक जगह इमामत कर रहे हैं। तकरीर के नाम पर हर जुमा को बयान होता है, तकरीर के नाम पर कोई 10 रुपए हाथ में देने को तैयार नहीं है। एक आदमी आता है, कुछ भी उलूल जुलूल तकरीर करता है, 30,000 उसके हाथ में थमाता है, उसको रवाना कर दिया जाता है। आप लोग कोई दिल पे मत लीजिएगा, ये मुकम्मल उम्मत मुस्लिमा का हाल है जो हम आपके सामने रखना चाहते हैं। ये कैसा इस्लाम है, ये किस तरीके से पैगाम रसानी का, ये कौन सा तरीका है कि लोगों तक तबलीग, दीन की तबलीग पहले पीराने निजाम कैसे करते थे, पहले के जो पीर लोग होते थे वो दीन की तबलीग कैसे करते थे? 3 दिन पहले आकर पहले हालात का जायजा लेते थे, फिर हालात के एतबार से बयान करते थे। और आज के मुकर्रिरीन, आज के पीर साहब लोग आधा घंटा पहले प्रोग्राम में पहुंचे, जो मन में आया, जैसा वाकया हुआ, कुछ मिला तो सही, नहीं तो कॉमेडी करके चला गया, कुछ भी नहीं, कोई मतलब नहीं है। क्या लेना देना ऐसे बयानात से? क्यों हो रहे हैं ऐसे जलसे? क्या जरूरत है ऐसी महफिलों की? कोई जरूरत नहीं है। हम देखते हैं कुछ कमियां हमारे मसाजिद के अइम्मा की भी है कि 10 15 साल तक उनके पास मुक्तदी बैठे हैं, मगर हर साल रजब के महीने में ख्वाजा गरीब नवाज की सीरत पे तकरीर, हजरत अमीर माविया की सीरत पे तकरीर, हजरत उवैस करनी की सीरत पे तकरीर, और किसी, जब रबीउल सानी का महीना आता है, रबीउल गौस जिसे कहते हैं, रबीउल अव्वल के बाद महीना आता है, तो हुजूर गौसे पाक की सीरत पे तकरीर। हम कह रहे हैं कि आप हर बार कुर्बानी का महीना आता है, वही हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हाथ में छुरी, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का गला। हम ये कह रहे हैं कि ये तकरीर आप कब तक करेंगे? जब लोगों को मालूम हो गया, हर बार हम 3 साल से आपके यहाँ है, हमने कभी इस वाकया को बयान नहीं किया। हम ये नहीं कहना चाहते कि ये वाकया बयान करना गलत है, गलत नहीं है, सही है, लेकिन जो बात लोगों को मालूम है फिर दोबारा उनको बताने का क्या मतलब है? और ये कोई जरूरी मसला भी नहीं। कभी लोगों का फोन आता है, जम्बूसर में भी माहौल है अजीब गरीब, कभी कभी फोन आता है, मतलब कभी एक शख्स का फोन ये था कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की फूफी या फूफा का क्या नाम था, भाई क्या करना है उस नाम से? वो उनका नाम लेकर अगर ताले पर हाथ रखेंगे और नाम पढ़ेंगे तो वो बगैर चाबी से ताला खुल जाएगा। ये तो चोरी करने का अमल हुआ। भाई उनके नाम से आपको सीखने को क्या मिलेगा? हम कहते हैं आपको वजू के मसाइल मालूम नहीं है, गुसल के मसाइल मालूम नहीं है, वजू के फराइज क्या है, गुसल के फराइज क्या है, आप ये दीन क्यों नहीं सीखते जो आपके लिए जरूरी है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के फूफा, उनकी फूफी का नाम जान के करोगे क्या आप? क्या मिलेगा आपको? क्या ताल्लुक है आपका? कौन सा मसला है जो रुका हुआ है उस नाम की वजह से? हम कई बात ये नहीं करें कि बुजुर्गान दिन का बयान नहीं होना चाहिए, लेकिन जब जिस वाकया को लोग एक बार जान गए फिर उसको बार बार बोलने का। मुहर्रम का महीना आता है, वही करबला की लड़ाई, वही लाखों लाख की मौत, वही लाखों लाख का कत्ल, वही गाजर मूली की तरह कटाई हो रही है, छटाई हो रही है। अजीब गरीब तकारीर, अजीब गरीब बयानात, लोगों को सही से पेशाब का तरीका नहीं है, इस्तिंजा का तरीका नहीं है, वजू और गुसल के तरीके बहुत सारे मुसलमान भाइयों को मालूम नहीं है। वो सिर्फ इनकी कमी नहीं है, कमी हमारी भी है कि हम लोगों से वो बातें नहीं करते हैं। हम जुमा का बयान आता है, लोग बहुत सा, हम कहते हैं कि कुछ लोग बाद में आते हैं, लेकिन कुछ लोग तकरीर सुनने के लिए स्पेशल अपना काम धंधा छोड़ के भी आते हैं, मजदूरी छोड़ के आते हैं। मगर हमारे अइम्मा मसाजिद से जुड़े हुए लोग क्या करते हैं?
ऐसे बयानात करते हैं लायानी, कि जिन बयानात का ना तो दुनियावी फायदा है ना कोई दीनी फायदा है, मगर बयानात हो रहे हैं। हम इस तरह के बयानात के सख्त मुखालिफ है। हम ऐसे बयानात के कायल नहीं है, ऐसे बयानात होने ही नहीं चाहिए। जुमा में कुछ लोग अपना वक्त निकाल कर आते हैं, उनके सामने वो बातें होनी चाहिए जो उनकी जरूरत है। लोग बहुत सारे दिन के जरूरी मसाइल है जो रोजमर्रा पेश आते हैं, जिनका जानना उनके ऊपर फर्ज है, मगर मालूम नहीं है, उस पर कोई इमाम बयान नहीं कर रहा है। बस सबसे बड़ी वजह यह है कि आज अक्सर हम बता रहे हैं आपको कि मेरे पास, मैं जम्बूसर में आपके यहाँ पिछले 3 साल से हूँ, और 3 साल की रिकॉर्ड इस तरीके से 2 कॉपी में मेरे पास रिकॉर्ड है। हर बयान को मैं लिखता हूँ और इसके लिए पूरी तैयारी करता हूँ। वक्त हालात का पूरा हफ्ता घूमने जायजा लेने के बाद फिर उसके एतबार से मैं आपके सामने बयान रखता हूँ, पूरा हफ्ता। और तमाम बयानात आज तक लिखे हुए हैं जो मेरे पास है, वो 2 कॉपी में, जो हर बार हम जुमा में लेके आते हैं। असल बात यह है कि कोई भी आलिम, कोई भी मस्जिद का इमाम कौम के पीछे मेहनत नहीं करना चाहता है। बस ये है कि वाकया है, कोई बात नहीं, 10-15 मिनट की तकरीर तो मैं यूं घुमा दूं, ऐसे ऐसे करूं, तकरीर बयान हो जाए। ये सिर्फ कौम को बेवकूफ बनाना है, कौम का वक्त खराब करना है, कौम को गुमराहियत की तरफ ले जाना है। सबसे बेहतरीन इमाम वह है जो वक्त और हालात के एतबार से बयान करे। सबसे बेहतरीन जुमे का बयान वह है जो वक्त के तकाजे के एतबार से बयान हो। जो वो सबसे बेहतरीन इमाम वह है जो लोगों के मसाइल पेश आए हैं, जिन चीजों की लोगों को जरूरत है, जो दीन का असल मकसद है, जो दीन के जरूरी मसाइल है, लोगों को उन मसाइल से जो इमाम आगा करे, वो बेहतरीन इमाम है, वो बेहतरीन आलिम है, वो बेहतरीन आपके रहबर है, बेहतरीन कायद है। मगर ये क्या, ऐसी उठ पटांग तकरीरें, अजीब गरीब वाकयात, अजीब गरीब करामात के दूसरे लोग हमारी तकरीरों का मजा लेते हैं, हमारे दीन, हमारे मसलक का लोग मजाक उड़ाते हैं। इसकी वजह यह है, तो हमारा जो मानना है कि सिर्फ 2 शख्स को नहीं, आज ये बात हम इसलिए बता रहे हैं, आप कहेंगे कि पूर्णिया में, बिहार सूबा में एक जलसा हुआ पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में, उस जलसे का गुजरात से क्या लेना देना गुजरात से नहीं है, मगर आवाम से है कि वहां ये जो हालात पेश आए, वहां के नौजवानों ने, शायरों की इतनी, आज हम ये कहते हैं कि उलमा की इज्जत कहां है। लोग शायर, मैं उस जलसे को देख रहा हूं, उस जलसे में एक मुफ्ती जुबैर साहब है, बहुत अच्छे आलिम दीन, बेहतरीन मुफ्ती, बहुत मुअद्दब, बहुत बड़े आलिम दीन है, वो पीछे बैठे हैं। और एक शब्बीर बरकाती, जिसने कभी मदरसे के पीछे से नहीं गुजरा है, उसको मालूम भी नहीं है कि मदरसा किसे कहते हैं। ऐसा शख्स जिसकी सही से हुरूफ की अदायगी भी नहीं है, जिसको, वो शख्स आगे बैठा है, नात पढ़ रहा है। और मुफ्ती जुबैर साहब, मुफ्ती शहरयार साहब वगैरह ये पीछे बैठे हैं। बताइए, इतने बड़े बड़े आलिम दीन, जिनकी उम्र के बेटे हैं, जिनकी उम्र के हजारों हजार इनके शागिर्द है, बड़े बड़े आलिम दीन इनके शागिर्द है, एक शब्बीर बरकाती जो है नात पढ़ा है आगे बैठ के, और वो लोग पीछे हाशिए में हैं। ये क्या उलमा की, ये किसने किया आखिर? ये हमारे मस्जिद के इमाम ने। याद रखिए, जितने भी जलसा जुलूस होते हैं, आज अगर यहाँ पे जम्बूसर में, अगर हमारी सोसाइटी में अगर जलसा होना है, तो मैं जहां तक समझता हूं मेरी मर्जी के बगैर जलसा नहीं होगा। तो पता क्या चला कि अगर नौजवानों को ये राह दिखाई गई है, अगर ये रास्ता दिखाया गया है, इस रास्ते पर गामजन कराया गया है, तो इसमें भी उलमा का हाथ है, इसमें भी उलमा का हाथ है। हम ये अपनी जगह बात है कि हम ये कहना चाहेंगे कि वहां पे जो इस्लाह का तरीका हुआ वो सही है गलत है, लोग अपने एतबार से तफसीर कर रहे हैं। ये वाकया मैं जुमा बयान में इसलिए लेकर आया कि इस तरह की लायानी जलसों से, इस तरह की लायानी तकारीर, इस तरह के लायानी बयानात जिसकी कोई जरूरत नहीं है, इन चीजों से इंसान को परहेज करने की जरूरत है। इन चीजों से इंसान को, मुसलमानों को बचने की जरूरत है। बयान वो कराओ, जलसा वो करो जिसकी जरूरत है। और जलसा आज से तकरीबन 30-40 साल पहले का इश्तिहार मेरे पास आया जो दिल्ली में हुआ था। वहां जिस मुकर्रिर का नाम है, बड़े बड़े मुकर्रिर, सरकार ताजु शरिया की वहां पे दावत है, मुफ्ती शरीफुल हक अमजदी साहब की दावत है, काफी साल पहले का इश्तिहार है। उसमें उनके नाम के साथ ये भी बता दिया गया है कि आपको किस मौजू पे तकरीर करनी है। आज क्या होता है, बस नाम दे दिया गया है, इतने सारे अलकाबात, साथ में एक मौजू भी लिख दिए होते कि किस मैटर पे बात करनी है। ये किसी इश्तिहार में नहीं लिखा होता है। और ये कौन तय करेगा? ये वहां के इमाम है जो जलसा करा रहे, जो वहां के नौजवान है। और शायर सिर्फ नात खानी 2-3 शेर के लिए 1-2 नात, बाकी तकरीर होनी चाहिए, और तकरीर से ही दीन का निजाम है, ये नहीं। और ये जो जलसा जुलूस है, इससे तो कोई दीन का निजाम नहीं है। आज पूरे बिहार बंगाल में जो जलसा जुलूस हो रहा है, इससे दीन को कोई फायदा नहीं है, जर्रा बराबर है भी तो ना के बराबर। एक आज जलसे होते हैं जहां पे इस्लाम के मकासद के एतबार से कोई एक बेहतरीन जलसा हो जाए, वो बहुत कम है, वरना इन जलसों से कोई फायदा नहीं है। अगर फायदा हो रहा है तो जुमा के जो बयानात होते हैं इसको बंद कर दिया जाए, मदरसों की जो तबलीग है उसको बंद कर दिया जाए, और फिर देखिए मुसलमान किस तरफ जा रहे हैं। कोई फायदा नहीं जलसा जुलूस से। दीन को जो फायदा है वो जुमा के बयानात से है, वो मदरसों से है, मस्जिदों के इमामों से है। ये जो मुकर्रिर है, ये खुतबा है, इससे दीन को कोई फायदा नहीं है। हिंदुस्तान में जो जलसे जुलूस हो रहे हैं, सिवाय इक्का दुक्का के सब बेकार है, वो होने ही नहीं चाहिए, उसका कोई मतलब ही नहीं है। 2 आदमी को नहीं, तकरीबन 98% मुकर्रिर और शोरा को छाड़ देना चाहिए, जरूरत नहीं है इनके स्टेजों पर।
ये इस तरीके से दीन का मजाक उड़ा के रखा है सबने। लोगों को ये बात समझ में नहीं आती, खास करके नौजवानों को। कहीं भी जलसा होता है उसमें हाथ नौजवानों का होता है या इमाम का होता है। ये दो तरह के लोग होते हैं जो जलसा कराते हैं। इससे आप परहेज करें और बिल्कुल एक साधारण तरीके से जो जरूरत है, आपको जिन चीजों की जरूरत है उन चीजों से मुताल्लिक आप जलसा जुलूस करो, उन चीजों से मुताल्लिक आप प्रोग्राम रखो। ये नहीं कि शादी का प्रोग्राम, इसका प्रोग्राम, उसका प्रोग्राम और करके जो है हजारों की तकरीर हो रही है और कोई फायदा कुछ भी नहीं। ना मुसलमानों को कोई फायदा, ना कोई दीन सीख के गया, ना कोई वजू के मसाइल सीखा, ना रोजे के, ना हज के, ना ज़कात के, ना कोई गुसल के मसाइल सीख पाया। मैं इंशाल्लाह आइंदा जुमे से इस ताल्लुक से आपके सामने बातें रखने की कोशिश करूंगा।